So that is very important. It is very important that we should know our brain is very important and we should know how to use it properly. Now tell me, all of you, you are answering very well. So how do you want to use your mind? In a good way or in a bad way? You want to use it for good things or bad things? Definitely for good things. Now when you want to use your mind for good things, you must listen to elders. That is the first point. Okay, because when your elders tell you anything, they have a big experience with them, right? When your teacher says anything, see, when your teacher is explaining something to you, how do you learn? You have to learn it yourself. Is teacher going to learn everything? They will just explain, but they have very good experience. So similarly, you have to listen to your parents, you have to listen to your teachers, because their experience is much better than your experience. You are growing up, you are not grown up. आप बड़े नहीं हो गए, आप बड़े हो रहे हो. Okay, so each and every day your brain is growing up, your body, your muscles, your mind, everything is growing up. You are not matured enough to take any decision. आप कई बार मम्मा पापा को बोलते हो ना, हमें यही करना है करना है करना है. Sometimes you become very rigid, right? आप जिद करते हो, बहुत बच्चे जिद करते हैं, right? So sometimes you become so stubborn, आप इतने जिद्दी हो जाते हो. लेकिन जब मम्मा पापा और टीचर्स कुछ गलत होता है आपको समझाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो हमारे बड़े हैं और उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. जब वो बोलते हैं अभी रुक जाओ, आप गिर जाओगे, ये गलत है, ये मत खाओ, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड दे आर राइट, बिकॉज दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड. आर यू एग्री? थम्स अप अगर आपको लग रहा है मैं ठीक बोल रही हूँ. वेरी गुड. नाउ नेक्स्ट स्लाइड. So this is about the difference between animals and human beings. Next slide please. So you have to choose your right path. You have to take your decisions. What is right and what is wrong. Next slide. Yeah, this is very important for all of us. That is about our thoughts, about our feelings. आपको पता है जैसा हम सोचते हैं हमारा behavior भी वैसा हो जाता है. Do you know? In our mind there are thousands or we can say millions of thoughts. They keep on coming, right? When you go to sleep, कितने बार दिमाग चलता रहता है, क्या क्या हम सोचते हैं, क्या खाना है, क्या पहनना है, कैसा हेयर स्टाइल करना है, कल को टेस्ट होगा, कितने मार्क्स आएंगे, मम्मा डांटेगी, मेरे पॉकेट मनी कम हो गई है, मोबाइल में ये करना है. देयर आर सो मेनी थिंग्स, राइट? इट कीप्स ऑन डिस्टर्बिंग यू, ऑल दीज थिंग्स. और जैसा हम सोचते हैं, द वे वी थिंक, द वे वी आर क्रिएटिंग आवर थॉट्स, सेम वे आवर पर्सनैलिटी स्टार्ट्स गेटिंग डेवलप. ओके, जो भी आप, अगर आप अच्छा सोचोगे आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होगी, अगर आप नेगेटिव सोचोगे आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव होती जाती है. ठीक है? समटाइम्स व्हेन यू सी अ पर्सन यू फाइंड दैट पर्सन इज वेरी गुड. ओके, इट हैपन्स, राइट? इफ यू डोंट नो एनीवन, somebody comes in front of you, then what is your reaction? You feel, oh he is a good person, oh he is not a, no मुझे पसंद नहीं आ रहा. ऐसा होता है ना कई बार किसी को देखने पर हम फील करते हैं ऐसा. तो वो जो पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट होती है वो आपके थॉट्स से आती है. ठीक है? तो आपको हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने हैं. और अगर आपका फ्रेंड्स भी अच्छे नहीं, अगर आपका फ्रेंड भी कुछ नेगेटिव आपको बोल रहा है, उसको बोलो ऐसी बात नहीं करनी, हमें सिर्फ अच्छी बात करनी है. वी शुड हैव पॉजिटिव थॉट्स एंड वी शुड हैव अ फीलिंग दैट वी हैव टू अचीव आवर गोल्स. ओके, अचीविंग आवर गोल्स मीन्स व्हाट शुड बी द गोल फॉर ऑल ऑफ यू एट दिस एज? व्हाट शुड बी योर गोल? योर गोल शुड बी, we should eat nicely, we should sleep nicely, I should put my effort in sports because you have to grow up also. अपने muscles को strong, body को strong रखना है. And another thing which is very important, you have to work hard in your studies also. ये आपके पढ़ाई करने की एज है, right? अगर बोलेंगे आराम करो मस्ती करो, पढ़ाई कहाँ गई? So you have to be very careful about your responsibilities. आपको खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गेस्ट अटेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये सब कुछ नहीं करना. व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, टू डू वेल इन योर academics and sports, and the biggest responsibility is you should know how to listen to your elders. Clear?
Next slide, please. Yeah, now this is health and wellness. There is a difference between health and wellness. Now if I say I am healthy and I am healthy, okay, I don't have any disease, that is why I am healthy. Am I correct? If I say I am free from diseases, I don't have any sugar, BP, thyroid problem, I am not fat also, I am free from diseases, I am healthy. Am I right? No. I will be healthy if I am healthy mentally, okay? Because the definition of health is when you are physically, mentally, socially, when you are healthy. Now physical disease, when I say I don't have sugar, diabetes, hypertension, that means physically मुझे कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी दिख नहीं रही है, ठीक है? If I am upset mentally, you don't know what is my mental state, so your mental well-being is also important. How are you thinking? How mindful you are? Okay? अभी आपको मैं बताऊंगी mindful होना क्या होता है. Next slide please. All the students must be mindful enough to understand to do their daily activities. Mindful क्या होता है? अभी देखिए जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, कितने बच्चे यहाँ बैठे हैं जो सोच रहे हैं नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, टिफिन में क्या है, अभी और कितना टाइम लगेगा, ये सोच रहे हैं ना. देखो हैंड, यस यस, रेज योर हैंड्स. कितने बच्चे ये सोच रहे हैं? ये जो जितने भी हैंड्स अप हो रहे हैं, आप फिजिकली यहाँ बैठे हो, मेंटली यू आर समवेयर एल्स. ओके, दिस इज नोन एज माइंडफुलनेस का ना होना. आपने देखा है कभी आप अपने क्रेयॉन्स या अपने स्केच पेन्स टेबल पर रख जाते हो और फिर मम्मा से पूछते हो मैंने यहाँ रखा था, मैं भूल गया, कहाँ रखा था, मेरी शर्ट कहाँ गई, मेरा हैंकी कहाँ गया, हम रखकर भूल गए. कितने बच्चे चीज़ें रख के भूल जाते हैं? सब बच्चे भूल जाते हैं चीज़ें रख के. तो अभी आप देखिए आपको कितना माइंडफुल होना सीखना पड़ेगा कि आप अपनी चीज़ें रखकर ना भूलें. हम कब भूलते हैं अपनी चीज़ें? व्हेन वी आर नॉट एट दैट प्लेस मेंटली. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइंडफुलनेस? यू शुड बी देयर मेंटली एंड फिजिकली इन द प्रेजेंट सिचुएशन. जो बात हो रही है वहाँ आ जाओ. इधर उधर, वी शुड नॉट थिंक अबाउट आवर फ्यूचर, वी शुड नॉट थिंक अबाउट आवर पास्ट. You should be present there mentally at that moment. Then only you will be mindful. तभी आपको अच्छा टीचर का भी समझ आएगा. Whatever we people tell you, you will able to grasp it nicely when you are mindful. Okay? Clear? अभी देखते हैं कितने बच्चे mindful हैं. Hands up. Both the hands up. Straight hands up. Down. Up. Down. Up. डाउन, अप, अप. देखो, ठीक है. आप डाउन, अप, डाउन, डाउन. तो माइंडफुल होने से मतलब है यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हाट ऑल इज हैपनिंग अराउंड मी एंड वी शुड नॉट मिस इवन अ सिंगल मोमेंट व्हाट एवर माई टीचर और माई पेरेंट इज टेलिंग. ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो दिस इज माइंडफुलनेस. नेक्स्ट, या दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो माइंड की बात तो हमने कर ली, अभी फिजिकल बॉडी की बात कर ले. माइंड भी अच्छा तभी काम करेगा इफ़ योर बॉडी इज़ फिट, राइट. सो जैसे कार में पेट्रोल डालते हैं, राइट. कार हैज़ पेट्रोल और डीजल एज ए फ्यूल, राइट. कार चलती है पेट्रोल के बिना, डीजल के बिना. तो आपकी गाड़ी कौन चलाता है? हाउ डू यू गेट फ्यूल फ्रॉम? यू गेट, यस, food. So food is our energy. We get fuel. Our fuel is our food. अगर वो food अच्छा ही नहीं होगा, आपकी जो मशीन है, आपकी जो बॉडी है, वो अच्छी चलेगी? नहीं चलेगी. तो अभी there is a picture of a plate. This plate shows how you should eat. What is the right way to eat? How your थाली, your plate should look like. Okay? मैं अभी आपको बताऊंगी, इसको अच्छे से सुनना और जाके अपने मम्मी और पापा को भी बताना. You should eat like this, then only you will be healthy. Understood? Now see in this plate we have first column is whole grains. Whole grains में क्या आता है? रोटी, चपाती, परांठा, पूरी, डोसा, इडली, जो हमारा मेन फूड होता है दैट कम्स अंडर होल ग्रेन्स. ठीक है, जो होल ग्रेन्स का बना होता है वो राइस आइटम भी हो सकती है, वो आटे की आइटम भी हो सकती है. नेक्स्ट इज हेल्दी प्रोटीन. सो व्हाट इज द प्रोटीन सोर्स? यस, कम ऑन.
Protein source fruits, cancel, 0 marks. Pulses, exactly. All dals, pulses, they come under proteins. इसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट भी आती है. तो अभी आप देखो, जो होल ग्रेन्स का कॉलम है उतना ही कॉलम आपका हेल्दी प्रोटीन का भी है. तो इसका क्या मतलब है, जितनी दाल रोटी उतनी ही जितनी रोटी पराठा उतने क्वांटिटी का प्रोटीन. मतलब जितनी रोटी है उतनी ही दाल लेनी है. दाल निकाल देते हो, रोटी खा लेंगे दाल छोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना. अभी देखो एक और वेजिटेबल्स का पार्ट है. वेजिटेबल्स का पार्ट कितना बड़ा है, ग्रीन देखो प्लेट में ग्रीन कितना बड़ा है. वो ग्रीन जो है आपकी रोटी से भी ज़्यादा बड़ा है. कितने बच्चे वेजिटेबल्स खाते हैं, सब खाते हैं, वेरी गुड. सारी वेजिटेबल्स खाते हो. यू शुड ईट कलर्ड वेजिटेबल्स ऑल्सो, ठीक है. पम्पकिन, कुकुम्बर तो ग्रीन होता है, और ये जो बीट रूट, जो भी रेड कलर की, येलो कलर की वेजिटेबल्स होती हैं, विटामिन ए रिच होती हैं, वो आपको ज़रूर खानी है. टेस्टी लगे या नहीं लगे, आपको खाना ही खाना है. ब्रिंजल कौन कौन खाता है, बैंगन का भरता, सब खाते हैं, वेरी गुड वेरी गुड. सारी कलरफुल वेजिटेबल्स आपको खानी है. ओके, देखो फ्रूट्स का कॉलम भी है. जितने सीजनल फ्रूट्स आते हैं वो सब खाने हैं. एक फ्रूट को स्टिक नहीं करना है, मुझे सिर्फ एप्पल ही अच्छा लगता है, बनाना नहीं अच्छा लगता. यू शुड ईट ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और कभी कभी इडली, डोसा, सांभर, जो भी आपको फॉर ए चेंज वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव. अभी जंक फूड की भी बात कर ले. जो जंक फूड होता है ना, वो ओकेजनल फूड होता है, वंस इन अ वाइल. सो कीप वन डे इन योर वीक फॉर योर जंक. डोंट मेक इट अ हैबिट कि मुझे जंक रोज स्नैक्स में चाहिए. मतलब थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा मैं आज खा लूँगा, थोड़े से रोज़ नूडल्स खा लूँगा, थोड़ा सा रोज़ पास्ता खा लूँगा, थोड़ा सा बर्गर छोटा खा लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो कीप वन पर्टिकुलर डे इन अ वीक व्हेन यू शुड हैव जंक फूड. कितने बच्चे रात को ब्रश करके सोते हैं, सारे बच्चे ही बहुत अच्छे हैं. यू मस्ट ब्रश योर टीथ बिफोर गोइंग टू बेड, ठीक है. क्योंकि जो आपका टूथ का डीके होता है ना, जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी अटैक करने वाले बैक्टीरियाज और वायरसेस, जो गंदे गंदे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आपके टीथ को खा जाते हैं, जब आप रात को सोते हैं उसी टाइम पर वो अटैक करते हैं. और मुंह बंद हो जाता है. मुंह खोल के तो बहुत कम लोग सोते हैं. मुंह तो बंद हो गया, वो अंदर अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं और थोड़ी देर में पता चलता है ओ हमारा टूथ तो गया. सो डू यू वांट टू गो टू डेंटिस्ट अगेन एंड अगेन? वो अगेन दे विल पुट needle, they will disturb you a lot. उससे अच्छा है you must brush your teeth before going to bed. Is it clear? Yes. So this is very important. You should make these habits because you have to become stronger. अभी आप बड़े नहीं हुए हो. Okay? Always keep that in your mind. Your brain is growing constantly. Every day is a day of your growth. Okay? You are not grown ups. You are growing up children. Clear? अभी आप बढ़ रहे हो. ऐसा नहीं सोचना हम बड़े हो गए हैं. आप बड़े नहीं हुए. आप बड़े होगे जब आप 18 years के हो जाओगे, तभी आपका ब्रेन पूरा डेवलप होगा. क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यहाँ ये बेस्ट कुछ फूड्स मैंने लिखे हैं यहाँ पे, जिसमें आप देखो होल ग्रेन्स. जो पराठा मम्मा बना के देती है ना, कोई भी पराठा, रोटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सुबह सुबह जब भी आते हो, मैं इसके बाद ब्रेकफास्ट की भी बात करूँगी. पराठे को ऐसे ही नहीं लेना, मम्मा पराठा बना के रोज़ दे देती है, हमें ब्रेड दे दो. कितने बच्चे ब्रेड प्रेफर करते हैं पराठे से? ब्रेड इज़ नॉट गुड. ओके, ब्रेड जो है, आप ब्रेड बटर, ब्रेड जैम, ब्रेड ऑमलेट, जो भी ब्रेड के साथ खाते हो, उसको हफ्ते में एक ही दिन रखना. क्योंकि जो वैल्यू आपके मम्मी के पराठे की है वो ब्रेड में नहीं है. ब्रेड को कभी बनता देखा है? जो ब्रेड का प्रोसेसिंग है ना, जो वो रोज़ रोज़ आपको ब्रेड में इतना अच्छा आटा, होल ग्रेन्स यूज़ नहीं होते हैं. तो जो पराठा मम्मा देती है वो अच्छे से आपको ब्रेकफास्ट में खाना है एंड ईट इट इन अ गुड फॉर्म. मतलब ऐसा नहीं एक दो, अच्छे से पेट भर के खाना है. यूज़ बटर, यूज़ घी, that is also very important for the development of your brain. Okay? अभी हम ब्रेकफास्ट की बात करेंगे. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. हाँ, ब्रेकफास्ट. तो बताइए मुझे, कितने बच्चे ब्रेकफास्ट करके आते हैं रोज? सब करके आते हैं. आपके सीनियर्स में तो बहुत कम लोग करके आ रहे थे, पता है. ये पूरी रो कल कोई भी खाना नहीं खा के आई. तो मैंने उनको बोला था कि आपको बिना हैंड्स डाउन, कीप योर हैंड्स डाउन. ब्रेकफास्ट मीन्स ब्रेक द फास्ट. रात को 10 to 12 आवर्स की फास्टिंग के बाद जब आप आते हो स्कूल,
आप फास्टिंग में होते हो तो उस फास्ट को ब्रेक करने को ब्रेकफास्ट बोलते हैं। जो बच्चे ब्रेकफास्ट नहीं करके आते उनका जो मेंटल पावर है ना, उनकी जो कंसंट्रेशन है, मेमोरी पावर है, वो इतनी अच्छी नहीं रहती अगर आप रोज़ रोज़ ये करोगे। कभी वंस इन अ वाइल हो गया तो चलेगा, बट यू शुड हैव अ हेल्दी ब्रेकफास्ट बिफोर कमिंग टू स्कूल। एंड इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर बॉडी, ऐसा नहीं है कि हमारी फिजिकल बॉडी, मेंटल स्टेमिना भी कितना डाउन होता है। आपने देखा असेंबली में कितने बच्चे गिरते हैं, चक्कर आ जाता है ना, आता है चक्कर, सुबह सुबह नौजिया होता है, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग होती है। पता है क्यों होती है? पूरी रात में हमारे स्टमक में एसिड इकट्ठा हो जाता है और जब हम कुछ खाते हैं वो एसिड डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। अगर आप कुछ खा के ही नहीं आओगे, पूरे एसिड वाला टमी लेके स्कूल में आ जाओगे और एक्टिविटीज़ करोगे तो थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग तो होगी ना, नौजिया हो जाता है। आप फेस किया किसी ने? डू यू एक्सपीरियंस द नौजिया इन द मॉर्निंग? और सिर्फ दूध नहीं पी के आना, डोंट ड्रिंक मिल्क एलोन एंड कम टू स्कूल, यू शुड हैव समथिंग विच इज सॉलिड। फ्रूट से भी नहीं होता है, ओके? फ्रूट्स बच्चों के लिए एज ए स्नैक्स ओके है, लेकिन जो आपका मेन मील होता है यू शुड हैव अ हेल्दी मील। 1-2 पराठे खा के आया करो मक्खन और घी के साथ। क्लियर? कर्ड इज ऑल्सो वेरी गुड। क्लियर? अंडरस्टूड? वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये देखो इसमें क्या दिखाया है। अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हो, स्किपिंग ब्रेकफास्ट, इट विल रिजल्ट इनटू लेस फिजिकल एक्टिविटी, मूड भी खराब हो जाएगा। कितनी चीज़ें हमारे ब्रेन के केमिकल्स के साथ रिलेटेड है, तो आपका मूड भी सारा दिन डाउन रहेगा। नेक्स्ट इज ओवरवेट। हाँ, ये तो मैं बोलना ही भूल गई थी। आपको पता है कितने बच्चे कहते हैं मैं नहीं खाऊंगा, मुझे वेट कम करना है, मैं नहीं खाऊंगा। अगर आप टाइम से नहीं खाते तो आपका वेट बढ़ता है। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट योर फूड। टाइम से खाना, टाइम से सोना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने मोटे नहीं होना। क्योंकि पता है मोटे जब लोग होते हैं उनको डायबिटीज भी साथ में हो जाता है, बिकॉज व्हाट हैपन्स इन आवर बॉडी, whatever we eat, there are some chemicals which are responsible for the digestion of that food. If you are eating every day at wrong intervals and at wrong time, what will happen? Those chemicals will also get confused. Oh, ये क्या हो रहा है? अभी तो कचौरी खा रहा है, अभी समोसा खा रहा है, भटूरा, किसी टाइम पे कुछ आ रहा है, किसी टाइम पर एक दिन ज़्यादा खा लिया, एक दिन कम खा लिया। What will happen? Your body's metabolism will get disturbed, and what will happen? It will result into आप या तो बहुत ही दुबले हो जाओगे या बहुत मोटे हो जाओगे। सो यू विल नॉट हैव अ स्टेबल एंड नॉर्मल BMI। ओके, BMI से पता चलता है कि आप कितने हेल्दी हो। ओके, एंड या दिस इज सीरियस हेल्थ इशू, दैट इज डायबिटीज़। जो लोग टाइम से सोते नहीं हैं और टाइम से खाते नहीं हैं। और एक चीज़ और आपको मैं यहाँ बोलना चाहूँगी, कितने बच्चे रात को 10 बजे तक सो जाते हैं? You should not exact, very good. So you should not compromise, okay? जब भी स्लीप की बात आती है आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। आपको पता है जब आप सोते हो तो ग्रोथ हार्मोन आके आपकी हाइट बढ़ाता है। किस किस को पता था ये? इफ़ यू स्लीप वेल योर हाइट इंक्रीजेज। तो जो बच्चे अभी टॉल होना चाहते हैं, जो बच्चे स्मार्ट दिखना चाहते हैं, उनको हेल्दी खाना है, पेरेंट्स का सुनना है, टीचर्स का सुनना है और अच्छे से सोना भी है। यू शुड हैव एटलीस्ट 8 to 9 hours ऑफ गुड स्लीप। क्लियर? So for the development of your height, for the growth, you need good sleep. Next slide please. Yeah, this is importance of breakfast again. Next. योगा फॉर स्टूडेंट। कितने बच्चों को योगा पसंद है? सबको, सब बच्चे योगा करते हैं। ओके, योगा में कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो आपकी हाइट और फोकस के लिए बहुत अच्छे हैं, ठीक है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ताड़ासन। किसी को ताड़ासन करना आता है? इज देयर एनीवन हु नोज ताड़ासन? ताड़ासन, वृक्षासन। ओके, वेरी गुड। सो कैन एनीवन कम एंड जस्ट डेमोन्स्ट्रेट? प्लीज कम, हरी अप, डोंट शाय, डोंट बी शाय, कम, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ये जो 2 आसन हैं ये आपकी मेमोरी पावर, आपकी आई पावर, आपकी ग्रोथ, आपकी हाइट सब इम्प्रूव करते हैं। यस, कम ऑन। ये है
वृक्षासन, ये ताड़ासन नहीं बेटा, ये वृक्षासन है। ओके, दिस इज नोन एज ट्री पोज। जब आप ऐसे करते हो ना, आपको आंखें नहीं घुमानी, बी केयरफुल। आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दीज टू आसनास ओनली, वी डोंट हैव मच टाइम। एंड नेक्स्ट इज सूर्य नमस्कार, आई विल टेल अबाउट सूर्य नमस्कार ऑल्सो, जस्ट लिसन टू दिस। दिस इज ट्री पोज। दिस ट्री पोज इज वेरी इफेक्टिव to increase your concentration. The thing which you should take care of, don't move your eyeballs here and there. Keep one dot in front of you. बिंदी होती है ना, जैसे बिंदी, उसको टारगेट समझ लेना है, उसको सामने लगा लो and be in this position. Try to hold it for some time. It is going to give a very nice stretch to your body. Your height will improve and simultaneously your focus will also improve. Clear? Understood? Thumbs up. If you have understood, thumbs up. Yes, this is tree pose. Now another is Tadasana, which is palm tree. That is different. Palm tree आता है? Yes, show me palm tree. Yes, you have to stand up on your toes. खींचो ऊपर और stretch करो, stretch करो. आंखें नीचे नहीं करनी, ठीक है? You should look at one point straight away in front of you. तभी आपका focus भी improve होगा, ठीक है? तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, physical body भी अच्छी होगी. Done? समझ आया? So this is palm tree pose. Okay, you can go. Another is सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सरसाइज है जिसमें आपकी हर मसल और बोन इन्वॉल्व होती है। तो बच्चों के लिए सूर्य नमस्कार बहुत बहुत अच्छा है और उसमें 12 डिफरेंट स्टेप्स आते हैं, ठीक है? 12 आसन नहीं आते, आसन तो कम ही है, लेकिन वो रिपीट होते हैं तो टोटल काउंट जो होता है 12 हो जाता है। तो जिन बच्चों को सूर्य नमस्कार आता है, try to practice it every day. If it is not possible, then at least during your holidays, on weekends, you must practice these simple poses to keep your mental as well as physical health good. Okay, दोनों के लिए काम करेगा ये. Clear? Clear? Okay, अब सब बच्चे सुखासन में बैठ जाएं. We'll end the session. सुखासना, do you know? वेरी गुड, वेरी गुड. स्लोली स्लोली. सुखासन के लिए इतना एफर्ट नहीं लगाना. सुखासन इज व्हेन यू आर सिटिंग डाउन बाय क्रॉसिंग योर लेग्स. चौकड़ी मारने को सुखासन कहते हैं. व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज लोटस पोज. चौकड़ी मारकर बैठने को सुखासन बोलते हैं. द ओनली डिफरेंस इज यू हैव टू कीप योर बैक स्ट्रेट. कीप योर बैक स्ट्रेट, शोल्डर स्ट्रेट. यस. Yes, close your eyes. Chin mudra. This is chin mudra. Chin mudra, everyone. Chin mudra. Thumb touching your index finger. Hand straight, back straight, shoulder straight. Close your eyes for 3 seconds. Close your eyes for 3 seconds. Last, boys, hands down. Touch your index finger with your thumb. Keep your hands on your knees, back and shoulders straight, eyes closed. I'll count till 3. Till 3 counts, just sit down. पूरा शांति के साथ, without any thought, without any movement. कुछ भी नहीं सोचना, कोई विचार नहीं लेके आना. सीधे बैठिए. बॉडी में कहीं भी कोई टेंशन नहीं. विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. आई विल काउंट टिल 3. Till 3 counts, sit down in a good mood. 1, 2, 3. Join your palms. Let your eyes be closed. Don't rub, just join your palms. We will end the session with the closing prayer. Sarve bhavantu sukhinah. Sarve santu niramaya.
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Now rub your palms. Feel the warmth which gets generated by rubbing your palms together, and keep your hands on your closed eyes. Stay there for 3 seconds. 1, 2, 3. Slowly, gently open your eyes. This method is known as palming. When you rub your palms, and when your palms they get warm, and when you place your palms on your eyes when they are closed, we relax our eye muscles. Okay, so it's a very good relaxation technique, and you should not be in hurry when you are doing all these things. Okay, jaldi jaldi se nahi karna ki bhagna hai. You have to be very 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 slow when you are doing these activities. Okay, how are you feeling now? Good? Okay, okay. Thank you very much for patient listening. Okay, all the best to all of you. Thank you, Dr. Deepika, for your valuable inputs. I feel it was a wonderful session. Really, there was so much in this session, and all of you might be knowing how important it is to take breakfast, and how important it is to take exercise daily, and to listen to your elders. There are so many takeaways you are definitely going at home today. So, dear students, whatever you have listened today, think for a while. Try to revise it sitting at home with closed eyes, whatever was discussed in this session, and then practice it. Unless you practice whatever you have learned, there is no use of that. So I believe all of you all are good students. Definitely you are going to practice it, and you will get benefit out of it. So on behalf of Dayanand Public School, the family of Dayanand Public School, I extend my warm thanks to Dr. Deepika for such a wonderful session here. So thank you dear, thank you Deepika. I think in coming days we will also be having a session for 3 to 5 students. That will be totally different. Even today's session now was similar to yesterday's one, but I feel there was so much new in today's session than the previous one. Because yesterday the students were from 9 to 10 class, and accordingly they were guided. And today, obviously, as per the age group of 6 to 8 class, you all are guided, so that you may get benefit out of it. So once again, I extend my warm thanks to Deepika and her daughter, who accompanied her even yesterday and today also. She told me that whatever PPTs and other things she is preparing, she is helping her. And she is in 8th class. She has just joined 8th class, as many of you are in 8th class. So she is helping her mother. Let me tell you one thing more. Dr. Deepika and her daughter and family, they are settled at Bangalore. They are living in Bangalore. Basically, she is from Kerala. She was here just for meeting her parents. And she is having a YouTube channel also. And a good number of followers are there on her YouTube channel also. She is having so many videos regarding your health and well-being, how to eat, what is good, what is you need to take care of. On so many issues, she is having very good videos on YouTube channel also. You can go there and you can access those videos. Definitely, you will get benefit out of it. Obviously, we are having a screening of this session also. So we will share when it will be available to us. Definitely we will share it with you so that you may listen it again sitting at home calmly, and you may
explain and you may ask your parents also to join that session. Okay, you will do this? Okay, so once again, thank you and God bless you all. And now I request the community, Bhavna and Rajni. Rajni, come forward. Put you also come so that we may give a token of remembrance to our today's orator, Dr. Deepika. So, Dr. Deepika, please come forward. Along with Nandita. Nandita, you to come. ताली ताली कैसे बजाएगी आप?